और आज हम बात करने वाले हैं सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मैं हूँ विशाल पटेल और आज हम बात करने वाले हैं सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना। इसमें आज हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, जेड डिस्ट्रीब्यूशन, चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे टॉपिक को एक बार अंडरस्टैंड कर लेना। इसके एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में कंपलसरी मिलेंगे और इसका आज हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं population and sample. So the population is a totality of all relevant data. This we call a population. Totality of all the relevant data, that we call a population. And for the sample, a part of a portion of unit is selected from the population. So if you are given a population and you select any of the portion like this way from that one, that we call a sample, and sampling, the process of drawing the sample of given population, that we known as a sampling. तो जो आप प्रोसेस कर रहे हो उसे आप बोलोगे सैम्पलिंग। नाउ द size is said to be a large if n greater than or equal to 30, and if n less than 30, in that case we can say that the size is small, right? And the population parameter that are also important. The population parameter and sample statistics. The statistics measure contain on the population. If we are discussing with the population, then the population mean, population variance are known as parameter, and that is denoted by theta. And if we are discussing about the sample, and in that case population mean and variance are known as statistics. And that is denoted by T. Now if parameter, you have to understand parameters are from the population, and statistics are from the samples, right? So we can see here a parameter never can be changed. क्योंकि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन के जो पैरामीटर होंगे वो सेम होंगे, बट सैम्पलिंग चेंज होगा बाय डिपेंड्स ऑन द सैंपल्स। अगर ये पूरा पॉपुलेशन है उसमें ये सैंपल का मीन अलग होगा, ये सैंपल का मीन अलग होगा, ये सैंपल का मीन अलग होगा। दैट्स वाई वी कैन सी हियर अ स्टैटिस्टिक वेरिएंस फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। जो आपका स्टेटिस्टिक्स होगा वो वेरी होगा, सैंपल टू सैंपल में वो वेरी होगा। बट द पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट, पैरामीटर कांस्टेंट ही रहेगा बिकॉज वो होगा कंप्लीट पॉपुलेशन के बेस पे। एंड द वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज नोन एज अ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैंपल की वजह से जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसे आप बोलोगे सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। एंड a statistic random variable, it must have a probability distribution. It's a random variable. So we can say that is a probability distribution. Now statistical inference means a theory of statistical inference of those method which make the population based information provided by the sample. We are not able to find the information using the population. In that case we find the information providing by the sample. सैंपल का यूज करके हम पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन गेस कर सकते हैं. ओके, डेट वी कॉल अ स्टैटिस्टिक इन्फरेंस. एंड द
you have divided into two major areas. One is estimation. Estimation means population parameter are estimated basis of the sample information. And like a candidate for election may estimate voters favor by obtaining the opinion using the random sample. ओके जो हम ओपिनियन पोल बोलते हैं ना, तो क्या करते हैं वो लोग सब जगह पे जाते हैं और अप्रॉक्स 1000 या 2000 पीपल का चेक करते हैं रैंडम डेटा कि वो लोग कौन सी पार्टी में फेवर कर रहे हैं, राइट है। तो उस तरह से पता चल जाता है कि वो पार्टी विन होगी या नहीं होगी। दे चेक द वोटर्स फेवर्स, ओके। एंड आपको पता चल जाएगा कि वो कैंडिडेट विन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट वी कॉल अ एस्टिमेशन, ओके। एंड सेकंड वन इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हमें इस पे डिपेंड करना है अभी, तो वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। हियर द हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट इज मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर and certain level of significance to check whether the made hypothesis is correct or incorrect. That is basis on simple information. Okay, यहाँ पे डिपेंड्स ये करता है कि आपके पॉपुलेशन पैरामीटर जो गिवन होगा उसमें से सैंपल इंफॉर्मेशन से आपको कंडीशन गिवन होगी कि हमारा सैंपल ये बता रहा है, तो उसका डिटेल यूज़ करके आप बता सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है फॉर गिवन पॉपुलेशन। नाउ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस टू टाइप्स के हो गए। वन इज नल हाइपोथेसिस, सेकंड इज ऑल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस। फॉर द नल हाइपोथेसिस इट इज द हाइपोथेसिस विच इज एक्चुअली टेस्टेड, राइट। नल हाइपोथेसिस को आपको टेस्ट करना है। एंड द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस विच इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नल हाइपोथेसिस, मीन्स अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो अल्टरनेट रिजेक्ट होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेट एक्सेप्ट होगा। द नल हाइपोथेसिस इज जस्ट अ सिंबल ऑफ इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को इक्वल, लाइक अगर आपको कुछ कंडीशन गिवन है कि मैं इससे सुपीरियर हूँ, तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि वो दोनों इक्वल है, राइट। तो हम ये चेक करते इक्वल के लिए अगर एक भी कंडीशन आप बता दो कि नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑटोमेटिक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके डन। तो इक्वल प्रूव करना हमारे लिए अच्छा है, ओके। बट ऑल्टरनेटिव में क्या होगा कि वो ग्रेटर देन चेक नॉट इक्वल है, तो बहुत सारी कंडीशन देनी पड़ेगी कि नॉट इक्वल क्यों है, ओके। लेस देन, ग्रेटर देन, अगर लेस देन टाइप होगा तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड टेल, राइट हैंड टेल अगर ग्रेटर देन होगा, एंड अगर नॉट इक्वल होगा तो टू टेल हाइपोथेसिस, ओके। तो हमें करना क्या है, पहले तो हमें नल हाइपोथेसिस को गेस करना है वो एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक ये एक्सेप्ट हो जाएगा, वो रिजेक्ट होगा ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट। तो वो कैसे करना है वो अब देखते हैं, डेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओके। यहाँ पे देखो टू साइडेड टेस्ट यहाँ पे होगा। वन टेल टेस्ट में दो पार्ट होगा, वो राइट हैंड टेस्ट एंड लेफ्ट हैंड टेस्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या गिवन है, इफ़ यू आर टू साइडेड टेस्ट, इन दैट केस वॉट एवर द अल्फा यू हैव टू टेक अल्फा बाई टू, एंड फॉर दिस केस यू हैव टू टेक अल्फा, राइट। यू हैव गिवन अल्फा, दैट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ द लेवल। तो वो क्या होता है 0.01%, मीन्स कोई भी कंडीशन है तो 0.1% चांस है कि वो सही होगा, राइट है। तो आप सोचिए कि 1% चांस, तो इन शॉर्ट 99% फेल होने का चांसेस है, ओके। तो इन दैट केस दैट वांट एक्यूरेसी, एंड इफ द 5% दैट वी कॉल अ मॉडरेट प्रिसीजन्स, ओके। द अल्फा इक्वल टू 5%, दैट मीन्स दैट देयर आर 5 चांस out of 100 the null hypothesis is rejected, ओके। 100 में से 5 चांस ऐसे हो गए कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, अदरवाइज नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, ओके। ये वाला जो रीजियन है वो क्रिटिकल रीजियन आप बोलते हो, क्रिटिकल रीजियन। तो जब राइट हैंड टेल टेस्ट होगा
तब आपकी ये जो वैल्यू है, देखो ये जो पैरामीटर है जेड की आपको वैल्यू गिवन है, अगर उससे आगे चला जाएगा मीन्स जेड ग्रेटर देन म्यू हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू इससे अगर आगे ये वाले रीजन में आ गई तो आप बोलोगे कि वो रिजेक्ट है, और लेफ्ट हैंड में ये वाले रीजन में आ गई तो भी आप बोल सकते हो कि रिजेक्ट है। सिमिलरली टू साइड टेस्ट में क्या होगा कि ये दोनों के बीच में वैल्यू आएगी तो सही है, एक्सेप्ट द रीजन 1 माइनस अल्फा। ओके, अगर यहाँ पे भी आ जाएगी तो भी रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगी तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी आपको जो भी दिख रहा है ओके जस्ट अंडरस्टैंड करो आप, राइट है। बाद में एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस इज एक्सेप्टेंस रेशियो कि 0.95% में एक्सेप्ट होगा और 5% में रिजेक्ट होगा। सेम हियर 0.95% में एक्सेप्ट होगा और 5% में रिजेक्ट होगा, डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी। ओके, अगर हाई प्रिसीजन है तो 1% का ही होगा। ओके, और ये जो जेड की वैल्यू है वो आपको टेबल पर से मिलेगी, कैसे मिलेगी वो अभी हम देखते हैं। ओके, दूसरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, मीन्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिनोटेड बाय v इक्वल टू n माइनस k, and here n is the sample size and k is the number of independent constraints. How to check this one? Suppose we ask to 5 observations, select 5 observation whose sum is 100. Then we are free to select any 4 आप कुछ भी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, बट द ऑब्जर्वेशन 5th that is automatically select by the restriction of total 100. ओके, पता चला। तो 5 नंबर का सम हमें 100 होना चाहिए, तो 4 तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट 5th वाला किस पे डिपेंड करेगा कि नहीं हमारा सम 100 होना चाहिए, वरना वो नहीं चलेगा। दैट्स वाई यू हैव टू फोकस ऑन द 1 नंबर हियर इंडिपेंडेंस एंड हियर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सो टोटल यू हैव अ चांस ऑफ 5, ओके, एंड यू हैव टू फोकस ऑन 1. So the degree of freedom is n minus k, that is 5 minus 1 equal to 4. In short 4 आप कुछ भी ले सकते हो, बट 1 ऐसा है कि जो डिपेंड करेगा कि हमारा सम 100 हो रहा है। ओके, डन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। ओके, नाउ सी हियर स्टेप्स इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में कुछ भी इतना तो आपको करना ही है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट है। सेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो पहले आपको सेट करना है कि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो एग्जाम में गिवन होगा कि क्या लेना है, कि आपको 0.5% लेना है, 5% लेना है या 1% लेना है, डिपेंड्स ऑन दिस वन। डिसाइड टू विच टेस्ट इज यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टेस्ट हमें यूज़ करना है, वो भी हमें पता चलना चाहिए। एंड फाइंड आउट द वैल्यू, तो हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है। फिर हमें चेक करना है कि यूजिंग द वैल्यू यूजिंग द टेबल, राइट। तो टेबल में क्या करना है, डिसीजन हमें लेना है कि अगर हमारा कंप्यूटेड वैल्यू है वो टेबल से छोटी होगी देन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। मैंने ऐसे आपको बताया था कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, राइट है, यहाँ पे हमारी वैल्यू है सपोज 1.63, ओके, और कंप्यूटेड वैल्यू है, कंप्यूटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से कहाँ से है, छोटी है, तो टेबल की वैल्यू से कंप्यूटेड वैल्यू यहाँ पे इस रीजन में है, तो छोटी हुई कि नहीं हुई। ओके, तो क्या होगा, हमारा एक्सेप्ट होगा नल हाइपोथेसिस। ओके ओके, राइट। और मैंने ये बताया था कि ये हमारा क्रिटिकल रीजन है, ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। अगर वैल्यू यहाँ पे आ गई तो वो हो जाएगा रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस। तो अगर कंप्यूटेड वैल्यू होगी हमारी वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन, तो ये रही हमारी टेबल वैल्यू, उससे अगर कंप्यूटेड वैल्यू यहाँ पे आ गई तो वो हो जाएगा रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इन शॉर्ट 1.63 से छोटी है तो एक्सेप्ट, 1.63 से ज़्यादा है तो रिजेक्ट। लाइक टेबल वैल्यू से छोटी है तो एक्सेप्ट, टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो रिजेक्ट। ओके, अब कौन सा टेस्ट यूज़ करना है वो आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या करना है। ये रहे टेबल वैल्यू, अभी हम बात कर रहे हैं। तो टेबल वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो,
टेबल वैल्यू के लिए सिंपली यहाँ पे गिवन है, देखो 15%, 10%, 5%, 1%, 0.5%, ये टेबल वैल्यू एग्जाम में आपको टेबल गिवन होगा। तो अगर आपको चेक करना है कि 1% के लिए, 1% के लिए, तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर वन टेल टेस्ट है तो 1% में ये हो गई हमारी टेबल वैल्यू, ये हो गई हमारी टेबल वैल्यू। तो हमारा आंसर अगर टेबल वैल्यू से अगर छोटा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, टेबल वैल्यू से बड़ा है तो एक्सेप्ट, सॉरी टेबल वैल्यू से छोटा है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बड़ा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर दिस वन, दिस इज द टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू से छोटा हो जाएगा तो एक्सेप्ट, बड़ा हो जाए तो रिजेक्ट। दिस इज फॉर अ राइट वन टेल। देखो -2.33, 2.33, इन शॉर्ट अगर ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट है, तो 2.33 यहाँ पे भी होगा और 2.33 यहाँ पे भी होगा माइनस वाला। तो मैंने बताया कि अगर ये रीजन में आ गया तो भी रिजेक्ट होगा, या यहाँ पे आ गया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर एवरीवन। तो टेबल वैल्यू इम्पोर्टेंट है, वो आपको मिल जाएगी टेबल पर से। अब हमें बाकी क्या बचा, हमें बाकी ये बचा है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द गिवन डेटा। ओके, यहाँ पे देख लो पहले, अगर टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट, जो आपको जो अल्फ़ा है वो लेना है आपको अल्फ़ा बाय 2, और डायरेक्टली अगर टेबल पता है तो अगर 1% है तो आपको देखना है कि हमारा आंसर इसके बीच में होना चाहिए, हमारा आंसर इसके बीच में होना चाहिए। इससे आगे जाएगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, इससे आगे जाएगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये रीजन में रहेगा तभी तो हमारा जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे भी रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बाकी देखते हैं। जेड टेस्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब हमारे फर्स्ट स्टेप पे आ गए, जेड टेस्ट कैसे करना है, राइट है। अगर जेड टेस्ट में हमें नॉर्मली अगर हम देखें तो जेड टेस्ट हमारा स्मॉल सैंपल साइज़ के लिए होता है। एक्स बार डेट इज़ द मीन ऑफ सैंपल, मैंने अभी जो पहले आपको बताया ना कि पॉपुलेशन एंड सैंपल पैरामीटर ओके एंड स्टेटिस्टिक्स, उसमें बताया था कि ये एक्स बार डेट इज़ द मीन ऑफ सैंपल का मीन होगा, म्यू होगा वो मीन ऑफ पॉपुलेशन होगा, वो टेबल में देख लेना, स्टेटिस्टिक्स और पैरामीटर वाले प्रीवियस जाके रिवाइज करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मीन स्टेटिस्टिक्स में ये होगा और इसमें होगा म्यू, जो हमारा मीन है ना वो पॉपुलेशन का हो जाएगा म्यू और स्टेटिस्टिक्स का हो जाएगा एक्स बार। सिग्मा इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, एन इज अ सैंपल। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं, यहाँ से आपको जेड मिलेगा, वो जेड टेबल वैल्यू में चेक करना है कि सही है, पीछे है या आगे है, ओके ना। तो अगर जेड ये हो, अगर हमारी टेबल वैल्यू में से अगर जेड इस जगह पे होगा तो वो हो जाएगा एक्सेप्ट, और अगर जेड हमारा इस जगह पे होगा तो वो हो जाएगा रिजेक्ट। बस अब आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है। सब कुछ गिवन होगा, टेबल वैल्यू गिवन होगी, ओके ना, तो सिंपल है आपके लिए। अब स्टार्ट करते हैं, देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल, लेट एक्स बी द लाइफ ऑफ कंप्यूटर अप्रॉक्सीमेटेड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 800। ओके, तो मीन आपको गिवन है, म्यू आपको गिवन है, देखो म्यू आपको गिवन है 800 डेज, तो आपको म्यू मिल गया। नाउ यू हैव गिवन अ स्टैंडर्ड डेविएशन 40 डेज, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा भी आपको मिल गया, राइट है, डेट इज अ 40। ओके, म्यू भी आपको मिल गया 800। ओके, नाउ द रैंडम सैंपल, अब देखो ये सैंपल की बात हुई है, कितने सैंपल की बात हुई है 30, तो एन हो जाएगा हमारा 30 यहाँ पे, एंड द कंप्यूटर एवरेज लाइफ इज 788 डेज। ओके, अब ये सैंपल बता रहा है कि हमारी कंप्यूटर जो एक्स बार जो हमारा मीन है वो है 788, और पॉपुलेशन बता रहा है कि वो 800 है। तो हमें क्या करना है, सो टेस्ट द नल हाइपोथेसिस एट म्यू इक्वल टू 800। तो हमें क्या चेक करना है कि म्यू नल हाइपोथेसिस बता रहा है कि हमारा 800 डेज है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बता रहा है कि 800 डेज नहीं है, वो कितने बता रहा है, 788 बता रहा है, राइट है। तो पहले हमने बता दिया कि हमें चेक क्या करना है, कि पहले तो हमें डिसाइड करना है कि नल हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेट, तो हमारा स्टेप 1 जो क्लियर हो गया। फिर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो एग्जाम में दिया होगा, तो चेक द लेवल एट 0.5%, तो अल्फा इक्वल टू 0.5%, डेट इज द 0.005,
डेट इज 0.005। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है, वो हमें देखना है कि कहाँ तक होगा। तो मैंने आपको बताया अगर नॉट इक्वल है तो टू टेल टेस्ट होगा, अगर म्यू ग्रेटर देन है तो हो जाएगा आपका लेफ्ट, और म्यू ग्रेटर देन है तो राइट, म्यू लेस देन है तो हो जाएगा लेफ्ट टेल टेस्ट। ओके, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो टू टेल टेस्ट हमें चेक करना है। तो टू टेल टेस्ट के लिए देखो यहाँ पे है टू टेल टेस्ट, उसके लिए हमें चेक क्या करना है, क्रिटिकल रीजन। तो जो वो वाला टेबल था अभी हमने देखा, वो टेबल में 0.05% में ये जो वैल्यू है हमारी, ये दो वैल्यू हमें मिलेगी। मैंने बताया था ना आपको, एंड करके लिखा होगा, रिफर टेबल 7.3, प्रीवियस जाके आप देख सकते हो। राइट है, तो हमारा आंसर ये दोनों के बीच में आना चाहिए। राइट है, हमारे पास सब कुछ है, सिग्मा है, म्यू है, एन है, एक्स बार है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि ये सब हमारी जो z की वैल्यू है, z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू, ओके, अपॉन सिग्मा अपॉन √n, इसमें हमें सब्सटीट्यूट करना है। राइट है, और चेक करना है कि वो ये टेबल की वैल्यू के बीच में आ रहा है या यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। ओके, बाहर जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, बीच में आ जाएगा तो सही हो जाएगा। राइट है, तो यहाँ पे देखो सब कुछ गिवन है, म्यू, एन, सिग्मा, याद कर लो, -2.81 एन 2.81। ओके, तो अब मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन √n 788 माइनस 800। ओके, तो आपको ये आंसर मिला। तो ये जो हमारा आंसर है वो किसके बीच में आएगा, -2.81 और 2.81 के बीच में आ रहा है। देखो बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। राइट, सो फर्स्ट वाला आंसर क्लियर। तो फर्स्ट वाला हमारा ये वाला क्लियर हो गया, 0.05 के लिए एक्सेप्ट हो रहा है। अब 15% के लिए क्या हो रहा है वो हम चेक करते हैं। तो 15% के लिए बाकी सब तो हमारे पास सेम ही है, z तो हमारा सेम ही आने वाला है, सिर्फ हमें रीजन फाइंड करना है। तो 15% के लिए हमारा देखो 15% के लिए टेबल पर से हमें क्या मिलेगा कि हमारा z किसके बीच में आना चाहिए, -1.44 एंड 1.44 के बीच में आना चाहिए। बट हमने जो z फाइंड किया है वो इससे आगे जा रहा है। देखो ये जो z है वो इससे छोटा है, -1.44 से छोटा है। राइट है, ओके, तो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। वो ऐसा हो रहा है, -1.44 से इस रीजन में आ रहा है तो वो हो जाएगा रिजेक्ट। राइट है, हमारा आंसर -1.44 और 1.44 इसके बीच में आता तो एक्सेप्ट हो जाए, यहाँ पे आ जाता या यहाँ पे आ जाता तो रिजेक्ट होता। तो हमें क्या मिला, -1.63। तो -1.63 -1.44 से इस साइड पे आएगा, माइनस वैल्यू यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे कहीं पे होगा -1.63। तो अगर इस रीजन में आ गया तो वो गया रिजेक्ट। सिंपली आपको याद रखना है कि ये दोनों के बीच में होना चाहिए, नहीं है तो रिजेक्ट। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो नेक्स्ट वन, अ कॉलेज क्लेम दैट एवरेज क्लास साइज इज 35 स्टूडेंट्स। ओके, तो एवरेज क्लास साइज हमें गिवन है 35। ओके, एंड द रैंडम सैंपल ऑफ 64, तो एन बी हमें गिवन है 64। देखो रैंडम सैंपल ऑफ 64 एन बी हमें गिवन है। क्लासेस हैज़ अ मीन साइज ऑफ 37। मीन साइज कितनी है, तो सैंपल में से अगर हमने चेक किया तो हमारी मीन साइज जो है वो मिल रही है 37। इन शॉर्ट हमें एक्स बार मिल रहा है 37। तो जो कॉलेज तो क्लेम कर रही है 35, बट अगर हमने डेमो लिया तो हमें पता चला तो वो तो है 37। ओके, एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा भी गिवन है 6। इन शॉर्ट सब कुछ आपको गिवन है, देख लो सब कुछ गिवन है, एग्जाम में देखोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। टेस्ट द अल्फा लेवल, अल्फा मिल गया आपको, तो अल्फा पर से आप टेबल पर से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आप जेड फाइंड कर सकते हो, जेड आपको पता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जेड आपको पता है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन √n। लेवल द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लेम वैल्यू। ओके, नाउ सी हियर, given system says that the 35 student but x bar is 37, so
our claim is mu is null hypothesis 37. Okay, but since we suppose that the claim is too low, okay, actually it's a greater than 35, so we are taking h1 as a mu greater than 35. म्यू ग्रेटर देन 35 अगर ग्रेटर देन है तो राइट हैंड टेस्ट होगा, ओके, राइट टेल टेस्ट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो स्टेप्स हमारे फिक्स है कि हमने नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट सिलेक्ट कर दिया, हमने सिग्निफिकेंस चेक कर दिया, फिर क्रिटिकल रीजन। तो आपको चेक करना है कि कौन से टेबल में जाके चेक करना है, 0.05 के लिए z क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.65। ओके, तो अगर ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन मीन्स क्या है, देखो ये सिंपल वस्तु है, सिंपल सी चीज़ है। अगर माइनस है तो छोटा नहीं होना चाहिए और प्लस है तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, सिंपली उतना याद रखो, राइट है। तो अगर हमारा 1 पॉइंट जो हमारा जो टेबल वैल्यू से हमें मिला 1.645, अगर इससे बड़ा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, इससे छोटा होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। हमारे पास x बार है, n है, सिग्मा है, तो हमने सब वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी तो हमें मिला 2.67। तो 2.67 1.65 से कैसी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। तो हमारा जो z है वो म्यू से बड़ा मिला, म्यू से बड़ा मिला, राइट है। हाँ, टेबल की वैल्यू से, जो टेबल वैल्यू है z वो, ओके ना, तो जो है वो हमारा बड़ा मिल गया, तो आप कह सकते हो कि दैट इज रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, डन, नाउ क्लियर, इट्स अ सिंपल थिंग, यू हैव टू फाइंड एवरीथिंग। नाउ z टेस्ट विथ लार्ज सैंपल साइज, ओके, वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होगा, और जो आपका डेटा होगा वो प्रपोर्शन ऑफ द सक्सेस सैंपल के फॉर्म में होगा। कैपिटल P होगा वो एक्चुअल प्रोपोर्शनल ऑफ द पॉपुलेशन होगा, और स्मॉल होगा वो सैंपल का होगा। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करनी है। वहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होगा और P माइनस पी PQ, तो आपको जो होगा वो स्मॉल सैंपल डेटा का गिवन होगा, राइट है। Q कैसे फाइंड करना है आपको, 1 माइनस पी, एन इज अ सैंपल साइज। देखो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो द सैंपल ऑफ 400 पार्ट्स, ओके, द मैन्युफैक्चर बाय द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स कैन बी फाउंड एट 30। तो अगर मुझे स्मॉल p फाइंड करना है, स्मॉल p सैंपल ऑफ, राइट, तो स्मॉल p हमारा हो जाएगा 30/400। तो फॉर्मूला में स्मॉल p मिल गया, स्मॉल p मिल गया, स्मॉल p पर से आपको स्मॉल q मिल गया। n मीन्स कितना डेटा आपने यूज़ किया है, राइट है, तो कितने पार्ट का आपने स्टडी किया हुआ है, राइट है, 400, तो n हो जाएगा आपका 400, राइट है। तो ये सब कुछ मिल गया, बाकी क्या बचा है, कैपिटल P। तो कैपिटल P के लिए यहाँ पे गिवन होगा द कंपनी क्लेम ऑफ 5% ओनली ऑफ द प्रोडक्ट, 5% प्रोडक्ट डिफेक्टिव, ओके, तो P आपका गिवन है 5%, तो कैपिटल P को लो 5%, डेट इज अ 0.05, राइट। तो उसका यूज़ करके आप सभी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको z मिल जाएगा, राइट है। बट हमें हमारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो पहले हमने ले लिया हमारा P, ये क्लेम द मैन्युफैक्चर एंड द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज P ग्रेटर देन 0.05, P ग्रेटर देन 0.05, डेट इज अ राइट हैंड टेस्ट, राइट हैंड टेस्ट हुआ ना, ग्रेटर देन हुआ तो आपको टेबल पर से 0.05 के लिए 1.645, तो हमें देखना है 1.645 से अगर बड़ी वैल्यू है तो रिजेक्ट हो जाएगा, 145 से z की वैल्यू छोटी है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर, राइट। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें ये चेक कर लेना है कि हमारी z की वैल्यू क्या मिल रही है। तो देखो वो मिली है 1.92, ओके, तो 1.65 से बड़ी वैल्यू हो गई तो हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा रिजेक्ट। ओके, यहाँ पे आपको गिवन है P इज इक्वल टू 0.05 ग्रेटर देन टाइप, राइट है। तो यहाँ से आपको परसेंटेज निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट है, तो वो 0.05 से बड़ा होगा, सो वी कैन से दैट दिस इज अ राइट हैंड टेल। ओके, राइट। अभी हम डीप में ज़्यादा नहीं जा रहे, राइट है, क्योंकि आपके लिए मैं स्पेशली कल एग्जाम में इसलिए बना रहा हूँ, राइट है। अभी यहाँ पे देखो द z टेस्ट ऑफ 2 population at a time, this is also important, you have given a 2 population at a time, in that case you have to find the 2 x bar
x bar for two samples A and B. Similarly you have to find S standard deviation, n आपको given होगा, राइट है। तो सिंपली यहाँ पे देखो 2 पॉपुलेशन एट अ टाइम के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो यहाँ पे देखो द रैंडम सैंपल ऑफ 100, ओके, एंड तो यहाँ पे देखो रैंडम सैंपल ऑफ 100, तो नंबर ऑफ 100 आपने ले लिए। फिर मैन्युफैक्चर कंपनी द मीन ऑफ लाइफ टाइम बल्ब इज, इसका मीन मिल गया लाइफ टाइम बल्ब का, सब ए के लिए, राइट है। तो एन ऑफ ए और एक्स ऑफ बार आपको मिल गया। विद द स्टैंडर्ड डेविएशन 90 हावर्स, तो आपको ए के लिए सब कुछ मिल गया, तीनों गिवन है, एक्स ए, एस ए और एन ए। नाउ इट ऑल्सो अ सैंपल ऑफ 75, तो एन बी के लिए सैंपल मिल गया। फिर द मैन्युफैक्चर कंपनी बी द मीन ऑफ 120, तो एन बी का मीन मिल गया एक्स बी बार। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन 120 हावर्स, तो एस बी आपको मिल गया। देखो सब कुछ गिवन है यहाँ पे, जस्ट यू हैव टू चेक फॉर द अल्फा, ओके। तो सिंपली म्यू ए नॉट इक्वल टू म्यू बी, म्यू नॉट इक्वल टू म्यू बी, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये मैंने अभी आपको बता दिया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 एग्जाम में आपको गिवन होगा कि किसके लिए चेक करना है। तो टू टेल टेस्ट हमें चेक करना है, और तो क्रिटिकल रीजन तो हमें टेबल पर से मिल जाएगा 0.05 के लिए। तो हमारा आंसर ये दोनों के बीच में होना चाहिए, इसके बाहर गया तो रिजेक्ट, ओके। तो सिंपली यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला है कि एक्स ए बार, एक्स बी बार, ऐसे, तो सब कुछ गिवन है। देखो आपके पास सब कुछ गिवन है। पहले क्या किया यहाँ पे कि ये डिनोमीटर फाइंड कर दिया, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे। फिर यहाँ पे एक्स ए माइनस एक्स बी बार वो सब गिवन है, डिनोमीटर में ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो आपको मिल जाएगा ये वाला z। तो चेक करना है हमारा z वो -1.96 और 1.96 के बीच में है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो इस साइड पे जा रहा है, तो हो जाएगा हमारा रिजेक्ट, हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि z इस साइड पे जा रहा है ना, -2 पॉइंट, z हमें क्या मिला है -2.421, तो वो हो जाएगा रिजेक्ट, ओके। सिमिलरली यू हैव टू चेक फॉर अल्फा इक्वल टू 0.01, 2 केस गिवन है, तो उसके लिए पहले हमने z डिसाइड कर लिया कि हमारा z ऐसा होगा टेबल पर से। बाकी ये z तो हमें कैसे फाइंड करना है, राइट एट, तो ये हमें देखना है कि ये दोनों के बीच में है तो एक्सेप्ट, नहीं है तो रिजेक्ट। तो किसके बीच में चेक करना है, -58 एंड 2.58, ओके। और हमारा z हमें क्या मिला, ये दोनों के बीच में मिल रहा है -2.42, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्सेप्ट। तो देखो यहाँ से आप बता सकते हो कि एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ओके। क्लियर एवरीवन, स्पीड में जा रहा हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए देख लो अच्छी तरह से, ओके, राइट। इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज, सब्सटीट्यूट, ओके, एंड चेक फ्रॉम द टेबल। टी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली आपका जो जेड डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए, अगर लार्ज सैंपल साइज के लिए, देखो फॉर्मूला सेम जैसी है, एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन √n, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, वहाँ पे लिया है वो वाला, राइट है। तो एस कैसे फाइंड करना है, अगर कई बार एग्जाम में एस गिवन नहीं होगा तो ये वाली फॉर्मूला से आपको फाइंड करना है 1/n-1, एक्स आई मीन्स गिवन वैल्यूज होगी, एक्स बार आपको मीन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है वो आपको पता है कि जो गिवन वैल्यू होगी एक्स उसका सम कर देना है अपॉन कितनी वैल्यू से आपको मिल जाएगा एक्स बार, एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, राइट। तो अब सिंपली देखो, द मशीन डिस्क्राइब द प्रोड्यूस द एवरेज थिकनेस ऑफ 0.025, राइट है। तो यहाँ पे टोटल की बात की है तो आप उसको समझ लो म्यू, 0.025 आपको गिवन है, राइट है। रैंडम ऑफ सैंपल 10 वर्सेस, तो एन भी आपको गिवन है, एन इक्वल टू 10, रीड करते जाओ आपको इजीली सब मिल जाएगा। फाउंड टू हैव एवरेज थिकनेस, अब एवरेज थिकनेस की बात की है, सैंपल की बात की है, तो वो हो जाएगा हमारा एक्स बार, डेट इज 0.024। देखो म्यू एक्स बार एन, बाकी बचा एस, एस भी आपको गिवन है 0.02, वाह वेरी गुड, 0.002, सब कुछ गिवन है। देखो फॉर्मूला में सब कुछ गिवन है, एक्स बार माइनस म्यू एस अपॉन √10, ओके। बट हमें सिंपली क्या चेक करना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं। नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू 0.025 है, ओके, बट ये बता रहा है कि 0.024 है, राइट है। सो अवर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट इज अ म्यू नॉट इक्वल टू 0.025, ओके। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज अ 5%, यहाँ पे गिवन है।
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज अ 5%, डायरेक्ट यहाँ पे गिवन है 2 पॉइंट, ओके। बट नल हाइपोथेसिस है तो ये देखो हमने चेक कर लिया, ये दोनों के बीच में आंसर होना चाहिए, इससे आगे जाएगा पीछे जाएगा तो गलत हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, इसका टेबल अलग होगा, वो टेबल गिवन होगा, टेबल पर से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, टेबल पर से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, या तो एग्जाम में ऑलरेडी आपको गिवन है, दोनों में से एक हो सकता है, या आपका 9 डिग्री पे 5% देख लोगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ओके। इसका टेबल अलग से। तो हमें क्रिटिकल रीजन मिल गया कि किसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए माइनस और प्लस, इसके माइनस और प्लस के बीच में होना चाहिए। तो टी हम फाइंड कर रहे हैं एक्स बार माइनस म्यू एस अपन √10, वैल्यू सब कुछ आपको मिल गया है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो -1.58, तो देखो -1.58 ये दोनों के बीच में होगा, -2.26 यहाँ पे +2.26, तो ये -1.58 इसके बीच में ही होगा, बीच में होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ओके। क्लियर एवरीवन, ओके, वेरी गुड। नाउ 10 इंडिविजुअल रैंडम्स नॉर्मल पॉपुलेशन, देखो यहाँ पे सब कुछ अलग से गिवन है, तो हमें क्या करना है, एंड चेक द मीन ऑफ हाइट 66, इसके लिए तो म्यू हमें 66 गिवन है, राइट है, ओके। तो म्यू नॉट इक्वल टू वो हमने अल्टरनेटिंग ले लिया, अल्फ़ा आपको 0.05 गिवन है, तो उसका यूज़ करके आपको चेक करना है कि रीजन किसके बीच में होना चाहिए, ओके डन, राइट। सेकंड थिंग, यहाँ पे एस आपको फाइंड करना है, तो एस के लिए मैंने जो फॉर्मूला बताई थी उसका यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो v हो जाएगा हमारा n-1, n है हमारा 10, तो n है हमारा 10, कैसे 10 है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो n हो गया हमारा 10, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी n-1, राइट है, तो वो हो जाएगी हमारी 9। तो हमारा जो क्रिटिकल रीजनों का टेबल से मैंने अभी बताया ना प्रीवियस के जैसा ही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 एंड परसेंटेज ऑफ दिस वन, तो सिमिलरली कॉपी टू कॉपी, फिर रिपीट होगा, आप ज़्यादा सम्स करोगे आपको पता चल जाएगा, राइट है। तो हमारा आंसर -2.262 और 2.262 के बीच में आना चाहिए, ओके। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ z। तो पहले तो मैंने ये फॉर्मूला किया, एस कैसे फाइंड करना है, 1/n-1, तो 1/10-1 xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो पहले एक्स बार फाइंड करना है, एक्स बार कैसे फाइंड करोगे, समीशन xi अपॉन n, तो जितनी भी आपको प्रीवियस वैल्यू है सबका सम करना है अपॉन वो कितना नंबर था 10, 1 2 3 4 5 ऐसे कितने नंबर थे 10, तो ये हो गया हमारा एक्स बार। तो ये हमारी फॉर्मूला है इसकी 1/n-1 xi माइनस एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार फिक्स है, xi मीन्स सब में से ये माइनस कर दो, सब में से xi में सभी वैल्यू में से एक्स बार माइनस करो फिर उसका स्क्वायर करो, तो देखो 63 माइनस 67.8 तो हो जाएगा -4.8 उसका स्क्वायर, फिर 63 तो -4.8 उसका स्क्वायर, 66 माइनस 60.7 तो -1.8 उसका स्क्वायर, तो ऐसे सबका स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 10-1, यहाँ पे लिखा है 10-1, तो ये सारी वैल्यू आ गई 1/9, आप सिंप्लीफिकेशन करोगे 1/9 इसका सम, तो आंसर आ जाएगा 9.069, डेट इज योर एस स्क्वायर। तो एस क्या हो जाएगा, रूट ले लोगे तो हो जाएगा 3.011। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि एस भी आपको मिल गया 3.011, म्यू भी आपके पास है, एक्स बार भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास गिवन है, देखो एक्स बार आपके पास गिवन है, म्यू आपके पास गिवन है, राइट है, म्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 66, एक्स बार आपको मिल गया 67, ये हो गया आपका एक्स बार, एक्स बार यहाँ से आपको एक्स बार ये रहा आपका एक्स बार, राइट है, एक्स बार क्या हो गया 67.8, तो एक्स बार भी मिल गया, म्यू भी मिल गया, एस आपने फाइंड किया डेट इज़ ये रहा, और एन आपको ऑलरेडी गिवन है 10, तो सभी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो और चेक करो कि ये दोनों के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो एक्सेप्ट, नहीं आ रही है तो रिजेक्ट, ओके। क्लियर एवरीवन, एग्जाम में सब मिलेंगे, एक बार देख लेना सिर्फ, आप इजीली कर पाओगे, जस्ट प्रिपेयर ऑल द फॉर्मूलाज, राइट है। मैंने सब कुछ यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ये मुझे मिला, तो ये दोनों के बीच में होगा, बीच में हो रहा है तो एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, सिंपल सिंपली चाई स्क्वायर टेस्ट, ओके। अब 2 ही टेस्ट बचे, फटाफट खत्म कर लेते, आप देख लो,
ओके, चाई स्क्वायर टेस्ट, इसमें ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एग्जाम में ये ज़्यादा मिलता है, चाई स्क्वायर टेस्ट। ये फॉर्मूला है, बहुत इजी है। ई आई जे कॉलम टोटल रो टोटल अपॉन ग्रांड टोटल। ई आई जे मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ओ आई जे मीन्स ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, उस पर से आपको ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है अभी आप सम देखोगे आपको पता चल जाएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स रो की वैल्यू -1 और कॉलम की वैल्यू -1। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना, अभी सम देखते आपको पता चल जाएगा कैसे फाइंड करना है। अभी यहाँ पे देखो, एग्जाम में ऐसा गिवन होगा, एग्जाम में ऐसा एग्जाम्पल करके गिवन होगा, द कंपनी ऑफ लाइक दिस वे डैश 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 डैश, और ऐसा एक टेबल गिवन होगा। तो टेस्ट द हाइपोथेसिस, अगर टेबल के फॉर्म में तो आपको समझ लेना है हमें चाई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करना है, राइट है। एंड शिफ्ट डाउन द ब्रेक डाउन द इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, आपको गिवन है 5%, वो चाई स्क्वायर का टेबल अलग से होगा, तो आपको 5% पर से टेबल पर से आपको चेक कर लेना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का यूज़ करके। तो पहले टेबल कैसे क्रिएट करना है, देखो कई बार ऐसा होता है कि आप कई स्टेप्स करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, टेबल क्रिएट करना बड़ी बात नहीं है। तो देखो इतना तो आपको गिवन है, 12, 11, ये सब कुछ गिवन है, देखो 12, 11, तो मैंने सब कुछ लिख दिया। अब मुझे फाइंड करना है ई आई जे। तो ई आई जे मीन्स कॉलम टोटल रो टोटल अपॉन ग्रांड टोटल। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे 12 का ई आई जे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा कि देखो ये कैसे मिलेगा, देखो मुझे ये नंबर का ई आई जे फाइंड करना है 12 का, तो मैं क्या करूँगा, देखो कॉलम का टोटल, तो ये कॉलम का टोटल कितना हो रहा है 44, देखो यहाँ पे फाइंड करके भी दिखाया हुआ है 44। फिर क्या लिखा हुआ है रो टोटल, तो यही नंबर का रो का टोटल कितना हो रहा है 35, तो रो का टोटल हो गया 35। और फिर लिखा है ग्रांड टोटल, तो ग्रांड टोटल यहाँ पे होगा, जो भी टोटल यहाँ पे होगा डेट इज योर ग्रांड टोटल, राइट है। तो ग्रांड टोटल आपको मिल जाएगा 138, राइट है। तो आपको मिल जाएगा E11, तो वो मिला 11.16, वो यहाँ से आपने लिख दिया। सिमिलरली अगर मुझे ये नंबर के लिए फाइंड करना है तो ये नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, ओके हो जाएगा E13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो E13 हमारा क्या हो जाएगा कि पहले तो मैंने लेना है कॉलम टोटल, तो कॉलम टोटल है हमारा 34 क्रॉस रो टोटल, तो इसकी रो का टोटल है 35, ओके अपॉन में ग्रांड टोटल है 138, तो आपको मिल जाएगा सेम आंसर 8.1। चेक कर लेना कैलसी में से। सिमिलरली अगर मुझे इसका फाइंड करना है तो कॉलम टोटल हो जाएगा 60, देखो मुझे इसका फाइंड करना है ये 23 वाले का, तो इसे आप क्या बोलोगे, रो कौन सी है थर्ड वाली, कॉलम कौन सा है सेकंड, तो वो हो जाएगा E32 में कॉलम टोटल है हमारा 60, ओके क्रॉस रो टोटल है हमारा 50 अपॉन टोटल हो जाएगा 138, राइट है। तो अगर इसका कैलसी का यूज़ करके आप सॉल्व करोगे तो 23 के लिए आपको यही आंसर मिलेगा, चेक कर लेना। तो टेबल कैसे क्रिएट करना है, देखो इजीली आपने टेबल क्रिएट कर दिया, ओके टेबल क्रिएट हो जाए फिर हमारा वर्क ओवर, तो एक टेबल क्रिएट करने के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो टेबल क्रिएट हो गया, ओके डन। अब हमें क्या करना है, देखो हमें चेक करना है कि पहले हमें नल हाइपोथेसिस फॉर एनी आर्बिट्ररी ब्रेकडाउन शिफ्ट द इंडिपेंडेंट, फॉर एनी आर्बिट्ररी ब्रेकडाउन मशीन शिफ्ट नॉट इंडिपेंडेंट, इन शॉर्ट म्यू नॉट इक्वल टू μ1 लाइक दैट वे। अल्फा आपको गिवन है 0.005 और वी इंडिपेंडेंट आपको कितना चेक करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1 C-1। तो यहाँ पे देख रहे हो रो कितनी है 3, कॉलम भी कितने हैं 3, तो 3-1 3-1 2 इंटू 2 दैट इज योर 4। तो अगर राइट वन टेल अगर टेस्ट आप चेक करोगे, राइट है यहाँ पे, ओके शिफ्टेड नॉट इंडिपेंडेंट, राइट वन टेबल चेक करोगे तो ये टेबल अलग से होगा, तो आपको चाई स्क्वायर कितना होना चाहिए 9.44 9.488, तो वो कंडीशन हमारी ज़्यादा हुआ और कम हुआ, ज़्यादा हुआ तो एक्सेप्ट, सॉरी ज़्यादा हुआ तो रिजेक्ट, कम हुआ तो एक्सेप्ट, ओके। तो चाई स्क्वायर किसके लिए 9.44, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो चाई स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं, कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये हमारी फॉर्मूला आई इक्वल, ये रो के लिए ये हमारी कॉलम के लिए ओ आई जे ई आई जे अपॉन ई आई जे होल स्क्वायर। फाइंड कैसे करना है देखो फटाफट। तो देखो ओ आई जे टेबल पर से देखो ध्यान से, हमें ओ आई जे माइनस ई आई जे अपॉन ई आई जे होल स्क्वायर,
तो हमारी ये जो वैल्यूज़ होगी जो ऑलरेडी गिवन होगी वो होगी हमारी OIJ, और जो हम फाइंड कर रहे हैं वो होगी हमारी EIJ, राइट है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो OIJ माइनस EIJ, तो पहले क्या करेंगे, टेबल में से ये माइनस करेंगे, सब में ऐसा करना है, OIJ माइनस EIJ, पहले 12 लेना है, ये माइनस करना है EIJ, राइट है। देखो यहाँ पे टेबल ये 12 मैंने ले लिया, 12 में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है, उसका स्क्वायर करना है, फिर से वही लिख देनी है, राइट है। सिमिलरली सेकेंड वाला बाजू वाला 12 है, उसमें से नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है, फिर उसका स्क्वायर है। 11 है, नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है, उसका स्क्वायर है, नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। देख लो यहाँ पे सब में ऐसा है, नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है, स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू माइनस। यहाँ पे देख लो 17 में क्या करना है, 15.94 माइनस करना है, स्क्वायर करना है, फिर यहाँ पे लिख देना है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करके स्क्वायर करो, नीचे वही वैल्यू लिखो। सब में से देखो 17 में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये सब को सिंप्लीफाई करोगे कैलसी में से तो 2.36, तो 2.36 इससे कम हुआ तो देन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, ज़्यादा होगा तो रिजेक्ट। ओके, 2.36 इससे कम हुआ तो डेट वी कैन से एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। सिंपल थिंग, क्लियर, ओके डन, राइट। सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। टेबल कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको बता दिया, राइट है। एंड लास्ट वन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट वन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे सिंपल ये सब कुछ गिवन होगा। एस अगर गिवन नहीं है तो कैसे फाइंड करना है वो मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, और डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए ये होगी और इसके लिए ये होगी। ओके, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन ये सबसे सिंपल है। देखो ओह, S1 और S2 ऑलरेडी गिवन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 2% के लिए, तो अल्फा इक्वल टू 2% 0.02, राइट है, राइट एंड टेस्ट होगा। ओके, तो इसके लिए 2 हो गए तो अल्फा बाई 2 हम लेते हैं ना, मैंने अभी आपको बताया वैसे ही, राइट है। तो आपको सिंपली S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आपको मिल गया 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 एंड V2 तो 10 × 9। ओके, तो हमें चेक कर लेना है क्रिटिकल रीजन, हमें क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल रीजन यूजिंग द टेबल। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी टेबल होगा, राइट है। तो टेबल पर से आपको ये पता चल जाएगा कि एफ ग्रेटर देन 5.26, राइट है। तो हमें टेबल पर से 5.26 मिला, इससे बड़ा होगा तो रिजेक्ट, इससे छोटा होगा तो एक्सेप्ट। तो हमारा जो एफ मिल रहा है जो वो क्या मिल रहा है 2, तो इससे छोटा हुआ तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, ये वाली वैल्यू है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके 10/9, और परसेंटेज है आपकी 0.02, वो टेबल पर से आपको पता चल जाएगी एक बार देखोगे तो, राइट। एवरीवन क्लियर, सिंपल थिंग है। स्टेप्स यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। पहले आपको अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस डिफाइन करना है, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना है, उस पर से क्रिटिकल टेबल की वैल्यू फाइंड करनी है, उस पर से आपका जो भी टेस्ट है एफ स्क्वेयर टाइसेस टेस्ट वो आपको चेक करना है। इससे छोटा होगा तो एक्सेप्ट, बड़ा होगा तो रिजेक्ट। ओके डन, क्लियर। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स। स्पीड में जा रहा हूँ, हमारे पास टाइम नहीं था, बाद में अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू, राइट है।